Already we have studied from the continuous time Fourier transform till the previous class, and now we are moving towards the discrete time Fourier transform. So whatever be the property, whatever be the condition for the continuous time Fourier transform is applicable to the discrete time Fourier transform. The first thing that is applicable, that it is for the aperiodic signal. And what we do with the aperiodic signal? In the time domain, basically, it can't be expressed in the Fourier form, in the periodic form. That's why the transformation is done in the frequency domain. And when we done the transformation in the frequency domain, it will show some period. That's why the transformation is basically done. So DTFS is basically, so we can say that DTFS is basically a representation of periodic signal xn, which is having a period n, because we are talking about the discrete one here, and frequency, because everything is done is in the frequency domain, and frequency is 2 pi n by n, and it is can be written as xn should be equal to this is for the periodic one, and here it we have a n. And now for the aperiodic, for which basically the DTFT comes into existence, that for the aperiodic discrete time signal, in this we have used the frequency domain. So if we have to do the DTFT of any signal xn, any signal xn is given, for which we have to find out the discrete time Fourier transform. So what we have to, we will apply this relation and take a limit from minus infinity to infinity. Then we will have a discrete time Fourier transform of a signal xn. Or if any function in the Fourier transform can be represented as a summation of the real value and the imaginary one. The real value is given by, it will be the half of x and plus conjugates of this.
and the imaginary one will be half x omega minus. So what we have seen that if we want to have the real and imaginary part of any Fourier transform function, then we have to also calculate the conjugate of that. Of course, this represents the conjugate, complex conjugate of or we can say that any Fourier transform is basically consists of one magnitude and the second one angle phase, where theta omega is equal to, so this one is the gives the magnitude spectrum, and angle, this will give the phase spectrum. Excuse me. And in the terms of the real and the imaginary part, magnitude spectrum is basically what? It will be the square root of the square. We first for that, first we take the square of the real and the imaginary part, and then we do the summation of that, and then at the end we will do the again the square root of that. मैम Yes, मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। क्या बात कर रहे हो? किसको नहीं हो रहा है स्क्रीन शेयर? सत्यम सिंह अभी हो रहा था, फिर कुछ समय से रुका हुआ है। कैसे रुका हुआ बेटा? अपना एक बार रिफ्रेश करके देख लो बेटा. Anyone else who have any problem with the screen sharing? Screen is visible to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सत्यम आप एक बार देख लो बेटा करके रिफ्रेश करके, क्योंकि स्क्रीन तो मेरे अकॉर्डिंग पूरा शेयर्ड है. And here there is no issue of the net from the my side if this is visible to everyone. This is just an introduction part of the DTFT. We will go through the numericals in detail. Then you will have a better realization of this. Then we are going to have the phase spectrum. And of course, this is equal to what? And when we want to express this in the terms of real and imaginary part, then this will be equal to tan inverse imaginary, and here it is real part. This is our okay. So before going through much of the properties and everything, let's do one numerical so that जो भी यहाँ पे अभी who are sleeping in the class can wake up. How many of you are sleeping? How many of you are sleeping? Should I call by name? Whom I think are sleeping? Shweta Singh, are you sleeping?
No, Those ma'am. who are not sleeping, please raise your hand. And those who are sleeping, please let me ask by their name. Sakshi Verma is not sleeping. Riya Bansal is not sleeping. बहुत बच्चे नहीं सो रहे हैं. कौन सो रहा है आप देखें. देखो ऋषभ सो रहा है. ऋषभ कहाँ है? ऋषभ कुमार. देखो ऋषभ कुमार को जरा आवाज लगा दो आप लोग भी. जस्ट पेन हिम इन द फोन. ऋषभ सक्सेना तो खुद को होल्ड पे रखा हुआ है. ही इज बिजी समवेयर. रिया बंसल. हाँ, ही इज प्रेजेंट. संदेश सिंह, आर यू स्लीपिंग? संदेश, कोई इसको भी आवाज लगा दो कि उठ जाइए. और ऋषभ सक्सेना जहां भी बिजी है प्लीज उसको बोलो मुझे कॉल करेगा. शिवम वर्मा, ही इज ऑल्सो कीपिंग दिस ऑन द होल्ड. शुभ श्रीवास्तव, शाकिब, all of you are requested to please respond fast. Otherwise, I will share the screen and make you all absent who will not respond in the class. At the end of the class, I'm going to do this. तो जो भी सो रहे हैं प्लीज उनको जाके बोल दीजिए उठ जाएं आज. So let's do one simple numerical so that every one of you should wake up. Take, you have to find the Fourier transform of the unit samples sequence xn is equal to del n. So for finding out the Fourier transform, what we have to do first? Who is going to say? Shweta saying, are you wake up? Shweta. Yes, ma'am. हाँ श्वेता बताइए, what the first step we are which I have to do in this? X E J omega, you have to write this expression first. What is the expression? This one. Okay? Yes, ma'am. आप अभी आंसर भी शेयर करोगे बेटा. अगर आप, मैं आपको करने नहीं बोल रही हूँ, पर आपका आंसर मुझे चाहिए इस पे कि आपने क्या लिखा. You have to take the limit from n equal to minus infinity to infinity, xn e to the power minus j omega, and this is basically the formula. And at the place of xn, what we will write? Del n. And what do you mean by del n? What is the del n? Shweta, can you please explain me what is del n? बताइए. Del n will be equal to 1 only at which condition? And only when, at which value of n its value will be equal to 1. बता सकते हैं? At which value of 1 n? श्वेता के बाद at the Ma'am, n value is of equals to 0. n equal to 0. So what we have to do here, of course, does not matter any value from the minus infinity to infinity. It will show result only at what? At n equal to 0. And del n, of course, 1 amplitude. So we have minus e to the power minus j omega n equal to 0. So Shweta, will you please tell me the answer? What will the Fourier transform of this equation? Shweta, be fast and you have to also share the answer in the written form. Rest of the student can also share their answer if they are willing, but Shweta has must to share the answer. Then only I will write here.
Now, here is a figure of a causal sequence. Value 1. Ma'am, 1. Yes, yes, beta 1. So the answer of the first transform, that is the Fourier transform of a discrete Fourier transform of a Deln, is 1. Okay. Now let's look at the next question. It is showing 1 at 0, 1 by A, 2, 1, 3, 4. कोई इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बता सकता है दिस सीक्वेंस का? इस सीक्वेंस का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कौन बता सकता है? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स इन हियर? किस तरह का सीक्वेंस बना है ये? यूवीएन। हाँ प्लीज दोबारा बोलो बेटा। मैम शायद ए की पावर एन यूवीएन। यस, वेरी गुड, दिस इज द सीक्वेंस। फॉर n इक्वल टू और लेस देन क्या होगा? मैम इस केस में तो लेस देन होगा 1। यस, a लेस देन। तो ये है आपका सीक्वेंस और उसका ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। यू हैव टू फाइंड आउट द फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो हु इज गोइंग टू सॉल्व विथ मी? जो सो रहा है बच्चा वही उठेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर उठ जाता है तो गुड शिवम। श्वेता, you haven't shared the answer in the chat box. मैम, इस क्वेश्चन का? हाँ बेटा, जो ऊपर वाला क्वेश्चन जो आपने आपके साथ किया था मैंने। तान्या परवल, आर यू इन द क्लास? तान्या, तान्या परवल, आर यू इन द क्लास? Is she in the class or not? आपको सॉल्व करना है तान्या इस क्वेश्चन को। आप लोग सब सॉल्व करिए बेटा, कैसे करना है। शिखर चौधरी, शिखर चौधरी, will you please solve this question? शिखर, यस मैम। ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा बेटा मेरे साथ। मैं अभी करके दे रहे हैं। करके देने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ साथ मुझे बताते जाइए, ठीक है? कि आप जैसा बताओ सारे बच्चे उसके साथ साथ करें। द फर्स्ट थिंग वी विल डू, बताओ फॉर्मूला क्या लिखेंगे? एक्स ई एप्स जे ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट? बताइए, आपसे ही पूछ रही हूँ। n equal to minus infinity to infinity, I am keep on writing. अब बताओ, इतना मैंने लिख दिया, ये तो फॉर्मूला था उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म का। व्हाट द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डू? शिखर, आर यू लिसनिंग मी? शिखर चौधरी, शिखर आप मेरे साथ कम से कम सॉल्व कर लीजिए बेटा। xn की वैल्यू हमने क्या लिखी यहाँ पे? an un, तो जस्ट राइट इट an un e to the power minus j omega n. So if here it is un,
What will be the change in the limit? Who is going to tell me? Vriti Mehrotra, are you in the class? Vriti Yes, is ma'am. raised. हाँ बताइए लिमिट में क्या चेंज आएगा बेटा जब UN है यहाँ पे? मैम UN है तो लिमिट 0 से स्टार्ट होगी ना, 0 टू Yes. इंफिनिटी। 0 to infinity. Our limit will change from the 0 to infinity. N. So what will be the answer? What will the Fourier transform? Now, Vriti, आप क्या बता सकते हो बेटा? What will be the answer here? One minus a e to the power minus j omega. This is our Fourier transform. तो शिखर आपने इसको सॉल्व कर लिया? शिखर चौधरी, शिखर Chaudhary, I am not able to listen you. Please respond fast. What the next thing we have to do? We have to find out the magnitude spectrum and the phase spectrum. Magnitude spectrum and the phase spectrum. So who is going to tell me what we have to do for the magnitude and the phase spectrum? Soumya Singh. Soumya Singh, are you listening me? Soumya. Soumya. Shanigd. Shashwat Avasthi. Okay, after 5 minutes, I am taking the attendance. And each and one of you have to respond in that case. For finding out the magnitude spectrum, we have to find out the real and the imaginary part of this equation. So for that, what we have to do, we have e to the power j omega है जो आपके पास, that is 1 minus a e to the power minus j omega. So we have to इसके डिनोमिनेटर के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है डिनोमिनेटर के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से। तो 1 माइनस ए ई टू द पावर जे ओमेगा से हमने इसको डिवाइड किया और इसको मल्टीप्लाई किया और इस एक्सप्रेशन को डिवाइड भी कर दिया। तो व्हाट वी आर गेटिंग 1 माइनस ए ई टू द पावर जे ओमेगा डिवाइडेड बाय 1 minus AE minus j omega 1 minus AE j omega. So what we are getting? इसको हमने ब्रेक कर लिया e to the power हम ऊपर 1 प्लस ए ई जे ओमेगा होगा ना, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हम न्यूमरेटर में 1 प्लस ए ई जे ओमेगा होना चाहिए ना। अब ये माइनस, अच्छा ओके मैम, इस माइनस को ही कर रहे हैं। इसको सॉल्व करके आप देखिए तो यू विल हैव द रिजल्ट। इसमें e टू द पावर j ओमेगा को हम इसमें ब्रेक कर सकते हैं, किसमें ब्रेक कर सकते हैं? हम कॉस और साइन के टर्म्स में जानते हैं ना इसे कैसे होता है। कॉस
और साइन का जो एक्सप्रेशन एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में आता है, उसके बेसिस पे जब हम इसे ब्रेक करते हैं, वी विल हैव ये आपका हो गया। तो डिनोमिनेटर में पूरा आपका विदाउट इमेजिनरी टर्म्स है, तो आपका एक्स आर जे ओमेगा हो गया 1 माइनस ए कॉस ओमेगा, एंड डिनोमिनेटर 1 माइनस 2a कॉस ओमेगा प्लस ए स्क्वायर। आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया माइनस ए साइन ओमेगा अपॉन 1 माइनस 2a कॉस ओमेगा प्लस ए स्क्वायर। बेटा आप लोग का यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन का कोई नोटिफिकेशन आया है क्या अभी? नो मैम। कुछ नहीं आया ना। फाइनल ईयर का तो ऑब्जेक्टिव में हो रहा है, तो उनको ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करवानी होगी। आप लोग का भी कुछ हमारे भी ऑब्जेक्टिव होंगे। ऑब्जेक्टिव ही होंगे? कहीं कुछ आया है ऐसा Yes, नोटिफिकेशन? मैम Yes, अभी मैम, ऐसा कह कुछ तो नहीं दिया है ना मैम, बस ऑनलाइन का बताया गया था आ कि चुका है मैम। साइडों में। आ चुका है? हम कल मैम भी ये लाए। लिखा था मैम, न्यूज़पेपर में खबर छपी थी मैम, उसमें ये लिखा था कि सब ईयर के ऑब्जेक्टिव होंगे और फाइनल ईयर की डेट शीट आ चुकी है और बाकी सब जो टेक्निकल है उनके ऑब्जेक्टिव होंगे और जो नॉन टेक्निकल है उन्हें प्रमोट किया गया है, ये आया था। तो दैट मीन्स हम लोग को ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी करनी होगी ना? यस मैम, वही मैम। ओके, तो फिर मैं ऑब्जेक्टिव के भी देखती हूँ, शेयर करूंगी आप लोग का रेडी करके मटेरियल। मैम 50 क्वेश्चन आएंगे, 1.5 घंटे का टाइम होगा। कोई बात नहीं, आपको लोग को देखो बेसिकली कहाँ से ऑब्जेक्टिव आएंगे। ऑब्जेक्टिव आपकी जो थ्योरी से आप रिजल्ट्स फाइनल वैल्यूज आते हैं, जो भी हम सॉल्व करके आते हैं, बस वही सारे होंगे। एमसीक्यू होगा ना फिर शायद? यस मैम, वही एमसीक्यू होगा। एमसीक्यू होगा, ओके। तो फिर हम लोग उसकी भी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे बेटा, हाँ, क्योंकि सिलेबस ना सिग्नल सिस्टम का बहुत वास्ट है, तो वी हैव टू वर्क तो अपॉन अ लॉट। न्यूमेरिकल मैम न्यूमेरिकल कहाँ आ पाएंगे? तो फिर मैम इतना, मैम अगर 1.5 घंटे का क्यों होगा नहीं तो आ मैम पाएंगे? इतना। आपसे देखो, सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनिए। सिग्नल सिस्टम में है ही क्या न्यूमेरिकल के अलावा? कभी नहीं आपने नहीं गेट का? मैम इतना बड़ा मैम प्रॉब्लम 1.5 घंटे का टाइम होगा ना, उसके हिसाब से कह रहा हूँ, हाँ जैसे हाँ, इतने बड़े उसके हिसाब से न्यूमेरिकल आएगा। है। अब मैं हाँ। आपको बता दूं, ये सब जनरलाइज्ड हो जाता है। ये सब मैं कल भी बोल रही थी ना आप लोगों को कि हर जो स्टैंडर्ड सिग्नल्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके इम्पल्स, यूनिट स्टेप, एक्सपोनेंशियल, रैंप, इस तरह कुछ सिग्नल्स हैं जिसके आपको तुरंत पता होनी चाहिए फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, डीटीएफटी क्या होगा। जैसे कि हम कभी भी एक्शन का इजिकल टू, अगर आपका डेलन है कोई सिग्नल, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है, तो वो हमेशा 1 होगा। उसके लिए कोई हमने इतना स्टेप 4 स्टेप लेके सॉल्व किया, बट ये याद रखने वाली चीज है। और जैसे प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस होते हैं, पहले भी हमने प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन किए हैं जो डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं एक लाइन में। मैम तो एक इससे क्वेश्चन के लिए 2 मिनट से भी कम टाइम मिल रहा है। तो सिग्नल सिस्टम में और होगा क्या बेटा, बताइए? सिग्नल सिस्टम में बेटा थ्योरी के नाम पे बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, कि थ्योरी के नाम पे बहुत ही छोटी चीजें, कि हाँ पीरियोडिक के लिए होता है, पीरियोडिक के लिए होता है, बट हाँ स्टैंडर्ड सिग्नल से उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म बता दो। ये सब चीजें तो आप लोग को याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप जैसे पिछले बार हमने क्या पढ़ रहे थे, कन्वोल्यूशन पढ़ रहे थे, तो हम कन्वोल्यूशन में देख रहे थे कि दो, अगर यूनिट स्टेप का और डेल का कन्वोल्यूशन है तो व्हाट विल बी द रिजल्ट। 2 यूनिट स्टेप के अगर कन्वोल्यूशन करोगे तो व्हाट विल बी द रिजल्ट। ये तो हो सकते हैं ना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। कन्वोल्यूशन का अगर चैप्टर उठाते हो आप, जो हम लोग कर रहे थे, तो एट दैट टाइम हम लोग यूनिट स्टेप की कन्वोल्यूशन की थी, यूनिट स्टेप से, यूनिट स्टेप की कन्वोल्यूशन की थी रैंप से, फिर यूनिट स्टेप की कन्वोल्यूशन की थी इंपल्स सिग्नल से। याद है आप लोगों को? यस, रिमेम्बरिंग और नॉट? वो सारे ऑब्जेक्टिव में ही आएंगे आपके।
अगर ऑब्जेक्टिव भी आना है तो उसमें ऑब्जेक्टिव में वैरायटी हो जाएगी। तो ये आपका ऑफ कोर्स एम्पलीट्यूड इसका होगा, एंड सिमिलरली आप जब फेस का निकालेंगे यू विल हैव द वैल्यू ऑफ कोर्स xi और xr का रेशियो मैम tan इनवर्स। मैम हाँ जी बोलिए। मैम मैम आप भी एक बार मैम पूछ के मैम पूरा क्लियर कर दीजिएगा मैम, जैसे कॉलेज में। हाँ मैं जान रही हूँ कि कल कॉलेज में गई थी, एट दैट टाइम ऑल्सो सब यही कह रहे थे कि ऑब्जेक्टिव का बच्चों को तैयारी करवाना पड़ेगा। यस मैम, मैम वही आ रहा फाइनल ईयर था। का तो कंफर्म्ड हो चुका है, यस मैम। फाइनल ईयर का कंफर्म्ड हो चुका है। ठीक है, हाँ। आप लोगों का डाउट है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू। फाइनल ईयर मैम का तो कंफर्म्ड है। बता दीजिएगा हाँ कंफर्म अब करके। तो हम लोग कॉलेज जा ही रहे हैं बेटा, तो कॉलेज में तो सब पता चली जाएगी। अब हम लोग कॉलेज जा रहे हैं। मैम हमारा रिजल्ट कब तक अपडेट होगा? कौन सा रिजल्ट है आप लोगों का? मैम हमारा मैम आर वाले Updated सबका status मैम दिखा रहा है। रिजल्ट में अपडेट शूट दिखा रहा है 2 सब्जेक्ट का। इनकम्प्लीट है मैम। यस मैम। हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगता, कुछ टाइम लगता है पर अपडेट हो जाएगा, डोंट वरी। आप लोग का पता करते हैं, फिर कल मैं जाऊंगी एक बार और पता करूंगी, क्योंकि आप लोग का फिर तैयारी भी उसी हिसाब से करवानी पड़ेगी। यस मैम, मैम हमें भी क्लियर कर दीजिएगा मैम। ऑफ कोर्स अगर क्लियर हो जाएगा, मुझे कंफर्म्ड हो जाएगा तो ऑफ कोर्स मैं आपको क्लियर करूंगी। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक ओके, है मैम, थैंक यू। यू कैन लीव द मीटिंग नाउ। फिर कल हम लोग फिर डीटीएफटी पे जाते हैं, और थोड़े छोटे 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 ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे हम। ओके, कल से ही शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा ऑब्जेक्टिव में हम जा ही सकते हैं। जो गेट वगैरह के क्वेश्चंस हैं वहां से उठा के हम डायरेक्टली वहां से उठा के सॉल्व करेंगे। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एवरीवन कैन लीव द मीटिंग नाउ। थैंक यू मैम।